امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کو جنیوا میں امن معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوگی۔ پاکستان میزبانی کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امن عمل کو سفارتکاری کی کامیابی اور جنگ کی تباہی قرار دے دی۔ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کو ٹال دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستانی قیادت کو نوبیل انعام دینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تحمل، بردباری اور دانش مندی سے امن عمل کو کامیاب بنایا۔ ایران سے معاہدے ہونے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سب کو مبارکباد۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے بعد جمعے کو آبنائے ہورمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے کھولا جائے گا۔ نائب امریکی صدر جمعے کو ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں گے۔ جے ڈی وینس نے معاہدے کو امریکہ کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ فاکس نیوز سے بات چیت میں کہا کہ ممکن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں۔ ایران نے بھی امریکہ سے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 7 دن کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ بنیادی فوکس پابندیوں کے خاتمے پر ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں تو اپنے طور پر اقدامات کریں گے۔ معاہدے کے تحت امریکی بحری ناکہ بندی 1 ماہ میں ختم کی جائے گی۔ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا لیبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کے مسودے میں شامل ہیں۔ امریکہ اور اتحادی ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے اعلان کے بعد آبنائے ہورمز سے پہلا جہاز گزر گیا۔ غیر ملکی میڈیا اور ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق قطر کے LNG ٹینکر نے آبنائے ہورمز پار کی ہے۔ دیشا نامی ٹینکر 2 مارچ کو قطر کی راس لفان بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا، جس کی منزل بھارت ہے۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمت کا پراتفاق خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں اہم پیش رفت کو مسلسل سفارتی روابط اور دوست ممالک کے اجتماعی عزم کی عکاسی قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے اعلان کا خیر مقدم۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کشیدگی میں کمی کی جانب اہم اقدام قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عمل کو آگے بڑھانے میں ان کی قیادت اور ویژن پر زبردست خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کو علاقائی استحکام کے لیے ان کی ثابت قدم حمایت پر سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا، اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ واضح کیا کہ پاکستان نے دنیا کو معاشی تباہی، خون ریزی اور عالمی بحران سے بچایا۔ پاکستان کی عالمی سفارتکاری نے دنیا میں امن کا نیا سورج طلوع کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل پر ترک صدر کی پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی تعریف۔ رجب طیب اردوان نے واضح کیا کہ پاکستانی قیادت نے فریقین کے معاہدے تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رجب طیب اردوان کا فریقین کو بیان بازی اور اشتعال انگیزی سے گریز کا مشورہ۔ قطر کی امریکہ ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت طے پانے کا خیر مقدم۔ پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف۔ قطری وزیر اعظم کا تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقین سے اظہار تشکر۔ امید کا اظہار کیا کہ فریقین مذاکرات میں مثبت اور تعمیری جذبے کے ساتھ حصہ لیں گے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا
अमरीका ईरान डील का खैर मकदम। एंटोनियो गुटेरेस ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब का किरदार काबिल कद्र करार दिया। अमरीका ईरान अमन माहिदे पर इत्तेफाक के बाद तेल की आलमी कीमतों में तेजी से कमी। ब्रेंट क्रूड $83 फी बैरल पर ट्रेड। तमाम एशियाई मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4,500 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती तैयारा मामूल के मुताबिक तरबियती परवाज के दौरान मर्दान के करीब हादसे का शिकार। 2 नौजवान शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स और शहीद लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी पाकिस्तान नेवी से वाबस्ता थे। IAS के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल मज़ीद मुआशी बेहतरी के इशारे दे दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान CPEC B2B हो गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 17 जून को पेश किए जाने का इम्कान। मिनी बजट या फुल बजट पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज फैसला करेगी। मिनी बजट के फैसले पर PTI क़यादत और कानूनी माहिरीन के दरमियान आज मुशावरत मुकम्मल होगी। हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार में मजीद इजाफा। हुकूमत के पहले 26 माह में कर्जों में 17,120 अरब रुपए का बड़ा इजाफा। मार्च 2024 से अप्रैल 2026 के दरमियान कर्जों में इजाफा हुआ। और फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन और आइवरी कोस्ट ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इक्वाडोर, ट्यूनिस को शिकस्त का सामना। जापान और नेदरलैंड्स का मैच 2-2 गोल से बराबर। अमरीका और ईरान के दरमियान जुमे को जिनीवा में अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब होगी। पाकिस्तान मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमल को सिफारतकारी की कामयाबी और जंग की तबाही करार दे दी। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को टाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तानी क़यादत को नोबेल इनाम देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दवारी और दानिशमंदी से अमन अमल को कामयाब बनाया। ईरान से मुआहिदे होने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सबको मुबारकबाद। ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे के बाद जुमे को आबनाए होर्मुज को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। नायब अमरीकी सदर जुमे को ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। जेडी वेंस ने मुआहिदे को अमरीका की बड़ी कामयाबी करार दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि मुमकिन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुआहिदे की तकरीब में शिरकत करें। ईरान ने भी अमरीका से मुआहिदे की तस्दीक कर दी। अमरीका से मुफाहमती याददाश्त का मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 7 दिन के अंदर मुनाकिद किए जाएंगे। बुनियादी फोकस पाबंदियों के खात्मे पर होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई तो अपने तौर पर इक़दाम करेंगे।
मुआहिदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 1 माह में खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी के मुसव्वदे में शामिल हैं। अमरीका और इत्तेहादी ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान के बाद आबनाए होर्मुज से पहला जहाज गुजर गया। गैर मुल्की मीडिया और ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कतर के LNG टैंकर ने आबनाए होर्मुज पार की है। दीशा नामी टैंकर 2 मार्च को कतर की रास लिफान बंदरगाह से रवाना हुआ था, जिसकी मंजिल भारत है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली मुफाहमत का पुरतपाक खैर मकदम। नायब वजीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में यहाँ पेशरफ को मुसलसल सिफारती रवाबित और दोस्त ममालिक के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कशीदगी में कमी की जानिब अहम इक़दाम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमल को आगे बढ़ाने में उनकी क़यादत और विजन पर ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। फील्ड मार्शल को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब का ईरान अमरीका मुआहिदे का खैर मकदम। बाजी किया कि पाकिस्तान ने दुनिया को मुआशी तबाही, खूनरेज़ी और आलमी बहरान से बचाया। पाकिस्तान की आलमी सिफारतकारी ने दुनिया में अमन का नया सूरज तुलू किया। अमरीका और ईरान के दरमियान डील पर तुर्क सदर की पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की तारीफ। रजब तैयब उर्दबान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी क़यादत फ़रीक़ैन के मुआहिदे तक पहुँचने में अहम किरदार अदा किया। रजब तैयब उर्दबान का फ़रीक़ैन को बयानबाजी और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज का मशवरा। कतर की अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त तय पाने का खैर मकदम। पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। कतरी वज़ीर आज़म का तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद का इज़हार किया कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी जज़्बे के साथ हिस्सा लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान डील का खैर मकदम। एंटोनियो गुटेरेस ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब का किरदार काबिल क़द्र करार दिया। अमरीका ईरान अमन मुआहिदे पर इत्तेफ़ाक़ के बाद तेल की आलमी कीमतों में तेज़ी से कमी। ब्रेंट क्रूड $83 फी बैरल पर ट्रेड। तमाम एशियाई मार्केट में तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4,500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती तैयारा मामूल के मुताबिक तरबियती परवाज के दौरान मर्दान के करीब हादसे का शिकार। 2 नौजवान शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स और शहीद लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी पाकिस्तान नेवी से वाबस्ता थे। IAS फ्लाइट के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल मज़ीद मुआशी बेहतरी के इशारे दे दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान CPEC B2B हो गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 17 जून को पेश किए जाने का इम्कान।
मिनी बजट या फुल बजट पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज फैसला करेगी। मिनी बजट के फैसले पर पीटीआई क़यादत और कानूनी माहिरीन के दरमियान आज मुशावरत मुकम्मल होगी। हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार में मजीद इजाफा। हुकूमत के पहले 26 माह में कर्जों में 17,120 अरब रुपए का बड़ा इजाफा। मार्च 2024 से अप्रैल 2026 के दरमियान कर्जों में इजाफा हुआ। और फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन और आइवरी कोस्ट ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। एक्वाडोर ट्यूनिस को शिकस्त का सामना। जापान और नेदरलैंड्स का मैच 2-2 गोल से बराबर।